Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. So I welcome you all in this channel and in this lecture of National Income Accounting. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, सब तो पहला ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ लागत ते शुद्ध घरेलू उत्पादन। इनका मुल जोड़ा है वो अपन दिता होया है 500। नंबर 2 अपन दिता होया है विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन। इनका मुल अपन दिता होया है 100। फिर है अपने कोल सरकारी विभागी उद्यमां नू संपत्ति अते उद्यम वृत्ति तो प्राप्त आमदन जो कि है 40। फिर अपन दिता हुआ है राष्ट्रीय कर्जे ते ब्याज जो कि है 20। फिर अपन देते हुए निगम कर जो कि ने 10। फिर है अपन परिवार तो प्रत्यक्ष कर जेडी कि ने 5। तो आप इस स्टेटमेंट तो जड़ा है वो व्यक्तिगत आमदन जड़ी है वो निकालनी है। तो आप जिवें अपने लेक्चर डिस्कस कीता सी कि व्यक्तिगत आमदन जड़ी है वो सीधी कदे नहीं निकलेगी। व्यक्तिगत आमदन कित्थों निकलनी है? निजी आमदन तो। निजी आमदन भी आपन नहीं दी हुई। तो निजी आमदन कित्थों निकलनी है? राष्ट्रीय आमदन तो। ऐसा मतलब आपन सब तो पहला की करना पड़ेगा, राष्ट्रीय आमदन जड़ी है वो निकालनी पड़ेगी। तो सब तो पहला आप की लिखांगे राष्ट्रीय आमदन। हम सोचो आपन दिता हुआ है साधन लागत ते शुद्ध घरेलू उत्पादन। आप लिख लेने आपन दिता है साधन लागत ते शुद्ध घरेलू उत्पादन। हम सोचो कि आपा निकालना की है, आपा निकालनी है राष्ट्रीय आमदन जेडी की हुंदी है, जेडी हुंदी है साधन लागत ते शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। हम अपने को हैगा की है साधन लागत ते शुद्ध घरेलू हैगा, घरेलू है बनाना राष्ट्रीय है। तो घरेलू ते राष्ट्रीय विच किंदा अंतर होएगा? विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन। तो आपा की करदे आ इनदे विच आपा विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन जिहड़ी है वो प्लस कर देने आ। तो ये अपन दिता हुआ है 500। विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन 100 है, तो ये अपने को बन गई 600। यानी अपनी राष्ट्रीय आमदन आंसर आ गया 600। हुन सीक्वेंस तोड़ोगे तो न्यूमेरिकल कदे सही नहीं होएगा। सब तो पहला की करना है राष्ट्रीय आमदन निकालनी है। हुन निकल गई राष्ट्रीय आमदन। हुन की करांगे? हुन निकालांगे निजी आमदन। हुन निजी आमदन कितने बराबर है? वो है राष्ट्रीय आमदन माइनस की करना है सरकारी। तो अपन दिता हुआ है वो दिता हुआ है कि सरकारी विभागी उद्यमां नू संपत्ति अते उद्यम वृत्ति तो प्राप्त
ਟੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਵਿਭਾਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਛੋੜ ਦੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਸਤਾਂਤਰਣ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਸਤਾਂਤਰਣ। ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 600, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 40 ਮਾਈਨਸ ਹੋਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ 20, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 580। ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ? ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ? ਟੈਕਸ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਿਗਮ ਕਰ। ਤਾਂ ਆ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈਗੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਆਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਮਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਣਵੰਡੇ ਲਾਭ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ 580 ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਨਿਗਮ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ 10, ਤਾਂ 570 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨਿਕਾਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਨਿਕਾਲੀ, ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਲੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ। मतलब ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 12। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 6। ਨੰਬਰ 3 ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਮਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ 2। फिर अपने कोल है निगम कर जो कि ने 4। फिर अपने कोल है निजी आमदन जिहड़ी की है 331। लास्ट अपने कोल है सरकार दियां विविध प्राप्तियां। विविध प्राप्तियां मतलब सरकार ने होर लोकां कोलों की लिया वो है अपने कोल 2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਮਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈਗੀ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੇ, ਯਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਮਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 331। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ 4, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ 2, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 325 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ 325 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 325, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 325 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਏਗੀ। ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਹੋਈ 325, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 2, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 325 ਚੋਂ 8 ਗਏ, ਬਾਕੀ 317 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ठीक हो गया। तो सीक्वेंस फॉलो करांगे, निजी आमदन दी सी, निजी आमदन तो पहला व्यक्तिगत आमदन निकालनी है, व्यक्तिगत आमदन निकाल के फिर आपा व्यक्तिगत खर्च करने योग आमदन जड़ी है वो निकालनी है। तो सीक्वेंस जड़ा है वो जरूर फॉलो करना है। हुन आपा एक क्वेश्चन जड़ा है इहदे नाल दा होर करांगे। हुन आपा नु क्वेश्चन है वो कहंदा है एंदे तो आपा की करना है, आपा एंदे तो एकता निकालनी है निजी आमदन, नंबर 2 आपा निकालनी है एंदे तो व्यक्तिगत आमदन। आपा दो चीज़ां निकालनी है। तो आपा नु स्टेटमेंट दी हुई है वो है निजी खेतर नु शुद्ध घरेलू उत्पादन तो प्राप्त साधन आमदन। मान लो ओ मिली 400 दी। नंबर 2 आपन देता होया है विदेशा तो शुद्ध चालू हस्तांतरण एवं मिले 10 दे। नंबर 3 सरकार तो शुद्ध चालू हस्तांतरण ए सपोज करो मिले 5 दे। नंबर 4 विदेशा तो शुद्ध साधन आमदन ए है 20। सब देखो हुन ए है विदेशा तो शुद्ध चालू हस्तांतरण, ए हस्तांतरण मिले ने, एक ही मिले उतो साधन आमदन मिली है, ये दोनों चीज़ां अलग अलग हैं। नंबर 5 आपने को है राष्ट्रीय कर्जे ते ब्याज वो 10 है। उस तो बाद निजी खेतर दे अनवंडे लाभ 5 है। उस तो बाद निगम कर 2 है। फिर परिवारा द्वारा दिते गए प्रत्यक्ष कर वो 1 है। तो ये अपन जड़ा है वो दिता गया। ठीक हो गया। हुण अपन तो सारा कुछ निकाल सकते हैं। अपन निजी आमदन भी निकाल सकते हैं, व्यक्तिगत आमदन भी निकाल सकते हैं, ते नाल आपा व्यक्तिगत खर्च करन योग आमदन भी निकाल सकते हैं। तो सब तो पहला आपा निकालांगे निजी आमदन। तो आपा लिख लेने निजी
ਆਮਦਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ। ठीक है, पर आप कैसे निजी आमदन कितों निकलती है? राष्ट्रीय तो एक ही दिता हुआ है, घरेलू यानी आपका की करना है, घरेलू नु की करना है, राष्ट्रीय बनाना है। तो की करांगे विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन प्लस करनी है। ऐसे हस्तांतरण ना प्लस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपा की कर रहे हैं, आपा बना रहे हैं राष्ट्रीय आमदन। राष्ट्रीय आमदन दे विच आपा कदे भी किसी भी तरह के हस्तांतरण जिहड़े उन्होंने आपा शामिल नहीं करते। तो प्लस की हो जाएगा, प्लस होएगा विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन। ता राष्ट्रीय बन गया। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, जिन्ने सरकारी ने वो की कर देने आ माइनस कर देने आ। तो देखो किते सरकारी दिता होया ਆਪਾਂ ਨੂੰ, देखो किते भी नहीं दिता होया, सरकारी है ही नहीं, यानी सरकारी नहीं है तो ऑलमोस्ट जीरो। हुण की करांगे, हुण सरकारी क्यों नहीं दिते गए? देखो क्योंकि ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਜੋੜ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹਸਤਾਂਤरण ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਸਤਾਂਤरण ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ प्लस की होएगा सरकार तो शुद्ध चालू हस्तांतरण प्लस की होएगा विदेशों तो शुद्ध चालू हस्तांतरण। ठीक है, अब प्लस हो जाएंगे। तो हम निजी खेतर ਨੂੰ घरेलू उत्पादन तो कितना मिला 400, विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन कितनी मिली 20 हो गया। फिर राष्ट्रीय कर्जे ते ब्याज कितना मिला 10, उस तो बाद सरकार तो हस्तांतरण मिले 5, विदेशों तो हस्तांतरण मिले 10। टोटल लगा दो 400, 420, 403, 435 ते 445। एक निकल गई अपनी निजी आमदन। हुन निजी आमदन तो की निकलेगा व्यक्तिगत आमदन। आप ऐसे साइड पे करने लगे आ। तो हुन आपा ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਆਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨਵੰਡੇ ਲਾਭ ਕਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ अनवंडे लाभ। यानी हुन निजी आमदन कितनी हुई 445, निगम कर जो सरकार लेगी 2 ते उन्हें आधे कोल कितने रखे 5, तो माइनस हो गए, तो 7 गए, तो 438 जड़ा है वो की आ गई अपनी व्यक्तिगत आमदन आ गई। हुन व्यक्तिगत आमदन तो की निकलनी है व्यक्तिगत खर्च करन योग आमदन। होने कितने बराबर है, जिन्नी भी व्यक्तिगत आमदन हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਹੋਈ 438, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 438, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ 1 ਦੇ, ਤਾਂ 437 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਲਟਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। उल्टा किवें करांगे, आप स्टेटमेंट लिखते हैं
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਰ ਜੋ ਕਿ ਨੇ 4, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨ ਵੰਡੇ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2, ਫਿਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2। ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 317। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ, ਬਣਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਸੀक्वेंस देखो, राष्ट्रीय आमदन, निजी आमदन, व्यक्तिगत आमदन, व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आमदन, 4 सीक्वेंस हो गया। उल्टा चल रहा है, हम व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आमदन तो व्यक्तिगत आमदन, यानी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ से नहीं निकाल सकते। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ व्यक्तिगत आमदन, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ व्यक्तिगत खर्च ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ उनकी वैल्यू पुट करो, जो नहीं पता वो अपने आप आ जाएगी। व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आमदन आपन पता है कि 317 है, व्यक्तिगत आमदन आपन पता नहीं पता तो एज इट इज पई रहन दो। प्रत्यक्ष कर कितने ने 6, सरकार दियां विविध प्राप्तियां कितनियां ने 2। हुन आपन निकालना की है व्यक्तिगत आमदन, एन एक पास ले जाओ दूसरे पास ले जाओ, ता व्यक्तिगत आमदन कितने बराबर होगी 317, इधर माइनस है इधर जाके की हो जाएगा प्लस दा, आ भी माइनस है की हो जाएगा प्लस दा, तो कितना आ गया 325। ये क्या आ गई व्यक्तिगत आमदन। हुन व्यक्तिगत आमदन तो की निकलेगा निजी आमदन, तो आप व्यक्तिगत आमदन का फार्मूला लिख लेने आ, वो कितने बराबर है निजी आमदन माइनस कितने बराबर है जिन्ने निगम कर लगे ते नाल किन्ने उन्ने आधे को रख ले जेड़े की हो गए उन्ने अनवंडे लाभ हो गए। ता व्यक्तिगत आमदन कितनी 325, निजी आमदन पता नहीं पता तो एज इट इज। निगम कर कितने ने 4, अनवंडे लाभ कितने ने 2, ता निजी आमदन जड़ी है वो कितनी आ जाएगी 325, इधर माइनस इधर आके प्लस माइनस आके प्लस 331 जड़ी है वो अपनी निजी आमदन जड़ी है वो आ जाएगी। ता इस तरह आप अगर उल्टा सीक्वेंस चलाना होवे तो भी हो सकता है। वो निजी आमदन का आंसर आ गया, कई बार स्टेटमेंट होर बता देगा तो कहेगा राष्ट्रीय आमदन कटो, तो निजी आमदन तो की निकल जाएगी, राष्ट्रीय आमदन भी आप निकाल सकते हैं। तो एक उल्टा प्रोसेस सी। हुन आप एक लास्ट क्वेश्चन जड़ा है वो होर करने आ। हुन उन्हें च आपां नूं दित्ता की होया है, सब तो पहला उन्हें आपां नूं राष्ट्रीय आमदन जड़ी है ऑलरेडी देती है जो कि है 3000। नंबर 2 ते है निजी निगमित खेतर दियां बचतां ओने 30। नंबर 3 आपने को ले निगम कर जो कि ने 80, फिर है सरकार तो शुद्ध चालू हस्तांतरण जो कि ने अपने को 60, फिर है सरकारी विभागी उद्यमा दी आमदन जो कि है 150, फिर
विभागी उद्यमा दी बचत जो कि है 40, फिर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जेडे कि ने 250, फिर है प्रत्यक्ष कर जो कि ने 100, फिर है विदेशा तो शुद्ध साधन आमदन जो कि है -10, फिर है अपने कोल लास्ट दे घिसावट खर्च जो कि है 5। ये अपन दिता हुआ है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਨਿਕਾਲੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਬਾय 1 ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। सब तो पहला आपा सॉल्व करनी है निजी आमदन, ठीक है। तो निजी आमदन से की करांगे, सब तो पहला राष्ट्रीय आमदन माइनस जेडे सरकार दे विभागी ते गैर विभागी ने दोनों माइनस इथे आ जाएगा सरकारी विभागी उद्यमा दी, एनु सॉल्व करना है, एनु अंडरलाइन कर लेते हैं। आमदन माइनस सरकारी गैर विभागी उद्यमा दी बचत। तो दो सरकारी माइनस उस बाद जो हस्तांतरण मिले वो प्लस। तो हस्तांतरण कितो मिले, देखो राष्ट्रीय कर्जे दे ब्याज दिता कितने, निजी निगमित क्षेत्र दे बचता निगम चार सरकार तो हस्तांतरण, बाकी तो हस्तांतरण नहीं दिता हुआ है। तो अपन की दिता हुआ है, अपन दिता है सरकार तो शुद्ध चालू हस्तांतरण, फिर अपन की देता है प्लस होल संसार तो शुद्ध चालू हस्तांतरण। हुन जो नहीं दिता उन्हें छोड़ देना है। हुन जो अपन राष्ट्रीय कर्जे ते ब्याज नहीं दिता तो ये नहीं सोचना सानू दिता ही कैसे न्यूमेरिकल किवें करिए, जो नहीं दिता ऑटोमेटिकली वो जीरो है। तो राष्ट्रीय आमदन कितनी है 3000, सरकारी विभागी कितने गए 150, गैर विभागी कितने गए 40, निकल गए। सरकार तो हस्तांतरण मिले 60, बाकी संसार तो हस्तांतरण मिले 50, यानी 3000 दे विच आपा 190 माइनस करना है, 110 प्लस करना है, यानी अल्टीमेटली आपा इनदे चों 80 माइनस करना है। आ 110 हो गए, आ 190 हो गए, माइनस से 190 ने प्लस से 110 ने, यानी कि माइनस से कितने आ गए 80, ता 2920 जेडी है एक निकल गई निजी आमदन। हुन कहंदा है तुसी सॉल्व करो व्यक्तिगत आमदन। ता व्यक्तिगत आमदन किवें निकालांगे, जिन्नी अपनी निजी आमदन है माइनस निगम कर जो सरकार ले जाएगी देते हुए ने, फिर निजी निगमित क्षेत्र दिया बचता जो ने आधे को रख लिया, माइनस किया गया निजी निगमित क्षेत्र दिया बचता, ये आपने को रख लिया। ता 2920 जेडी निजी आमदन सी, सरकार निगम कर लेगी 80, उन्हें आधे को रख ले 30, ता 110 जड़े ने वो आपा माइनस करने ने, ता 2810 जड़ा है वो किया गया अपनी व्यक्तिगत आमदन। हुन आपा सॉल्व कर सकते हां व्यक्तिगत खर्च करन योग आमदन वो कितने बराबर है। हुन तुम फार्मूलाज याद हो गए होंगे, ता मैं थोड़ा तेज चल रहा। व्यक्तिगत आमदन दे विचों जिन्ने प्रत्यक्ष कर दिते वो माइनस हो गए, उस तो बाद सरकार दियां होर विविध प्राप्तियां वो अपन दिता ही नहीं होया। ता व्यक्तिगत आमदन 2810, प्रत्यक्ष करके ने दिते 100, ता एक ना आ गया 2710, ये हो गया। हुन उन्हें अपन एक चीज होर गई, कहंदे हैं शुद्ध राष्ट्रीय खर्च करन योग आमदन निकालो। हुन एक कांसेप्ट आपा सवेरे कीता सी एक अपने लास्ट लेक्चर दे विच, राष्ट्रीय खर्च करन योग आमदन, यानी अगर सोचो भी ये शुद्ध नाम ही लग्या हुंदा
ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲੇ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਚੱਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਯੋਗ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ यानी ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਨ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ यानी किंदे ते साधन लागत ते आपा की करना है खर्चा खर्चा किंदे ते हुंदा है बाजार कीमत ते यानी आपा किसी चीज ते कितना खर्चा करांगे ये इस गल ते डिपेंड करदा है कि उनकी बाजार कीमत जड़ी है वो कितनी है ता हुन अपने को जो राष्ट्रीय आमदन पई है वो साधन लागत ते पई है आपा बनानी किंदे ते है बाजार कीमत ते हुन साधन लागत ते बाजार कीमत दा डिफरेंस सोचो किंदे बराबर है वो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे बराबर ता सब तो पहला ता मैं की कर देना शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जेड़े ने वो जोड़ देना ताकि मैनू बाजार कीमत ते बना सका हुन अपने कोल कितनी राष्ट्रीय आमदन है जिन्हों आपां खर्च कर सकते हैं वो ता इस गल ते भी डिपेंड करदा है कि आपां विदेशां नूं किन्ने दान दिते ते विदेशां ने आपां नूं किन्ने दान दिते तो वो भी अपने कोल ही ने आपां उन्नू भी खर्च कर सकते हैं तो की आएगा आपां जोड़ांगे इहदे विच बाकी संसार तो शुद्ध चालू हस्तांतरण यानी एक वो पैसे ने जो आपां नूं बाकी संसार तो मिले यानी हुन ए भी अपने है आपां चाहिए तैनू खर्च कर सकते हैं ता राष्ट्रीय आमदन आपां नूं कितनी दित्ती हुई है 3000 उनदे च शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितने ने 250 आपां नूं विदेशां तो कितने हस्तांतरण मिले 50 आ गया ता टोटल आ गया 3300 ता 3300 जड़ी आ गई वो क्या आई अपनी आई राष्ट्रीय खर्च करने योग आमदन हम कुछ नहीं लिखा ता आप की लगा सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय खर्च करने योग आमदन हम कहते हैं कि एक चीज और निकालो वो है कुल राष्ट्रीय खर्च करन योग आमदन ता आपने कुल की पे शुद्ध राष्ट्रीय खर्च करन योग आमदन ए एज इट इज देख लो आपा लिख लेने शुद्ध राष्ट्रीय खर्च करन योग आमदन लिखी हुन जो आपने कुल हैगा वो की है शुद्ध है आपा बनाना की है कुल यानी शुद्ध नु कुल विच बदलना है हुन सोचो शुद्ध ते कुल दा डिफरेंस जेड़ा है वो कितने बराबर हुंदा है कुल ते शुद्ध दा गिसावट हैगा शुद्ध है बनाना कुल है की करांगे विच आपा गिसावट खर्च जेड़ा है उन्हों की कर देंगे ऐड कर देंगे ता अपनी शुद्ध राष्ट्रीय खर्च करने योग आमदन कितनी निकली सी 3300 गिसावट खर्च कितना है 5 ता आंसर कितना आ गया अपना 3300 5 एक निकल गई ये अपनी कुल राष्ट्रीय खर्च करने योग आमदन जड़ी है वो निकल गई ता इस तरह आपा राष्ट्रीय आमदन ते राष्ट्रीय आमदन दे नाल होर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵਿਧੀ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ राष्ट्रीय आमदन पहला सीख के उस तो बाद जाके फिर की करना है निजी आमदन व्यक्तिगत खर्च करने योग आमदन राष्ट्रीय खर्च करने योग आमदन उन्होंने अपना बाद विच सॉल्व करना है पहला हमेशा राष्ट्रीय आमदन को कैलकुलेट करना जड़ा है वो सीखना है वो ਤੁਹਾਨੂੰ कौन सिखाएगा वो ਤੁਹਾਨੂੰ आमदन विधि उत्पादन विधि ते खर्च विधि जड़ा है वो सिखाएंगे तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸੋਲਵਡ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਸੋਲਵਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅਗਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦਾ मीनिंग जरूर लेके चलना है अगर मीनिंग लेके चलोगे तो की होएगा
कदे फार्मूला गलत जड़ा है वो नहीं होएगा, क्योंकि हरेक फार्मूला दे पीछे एक लॉजिक काम करता है, वो लॉजिक जड़ा है वो जरूर लेके चलना है। जो मैं तुहानू फार्मूला समझाए ने वो लॉजिक दे नाल समझाए ने, एवें नहीं कोई मर्जी प्लस करता कोई मर्जी माइनस करता। हर चीज नू प्लस करन दे पिछे, माइनस करन दे पिछे या उन्हें छड्डण दे पिछे लॉजिक ने, तो लॉजिक जड़ा है वो जरूर लेके चलना है। उम्मीद है तुहानू लेक्चर अच्छा लग्या होएगा, समझ आया होएगा। कोई डाउट होवे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पा दिया जे ते चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करिया जे, लाइक भी करना है ते नाल दे नाल शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।